एक बहुत ही फेमस कोट है जो कहता है कि एम फॉर द स्टार्स इवन इफ यू फॉल शॉर्ट यू विल लैंड ऑन वन. But I think right now I am pretty much blessed and happy because I'm sitting next to a star. Hello Priyanka, welcome. Hi Sudev, thank you so much for calling me here. प्रियंका के बारे में अगर हम बात करें तो एक थोड़ी देर पहले जो कॉन्वर्जेशन हुई थी हमारी उसमें से एक लाइन में आपको बताना चाहूँगा. तो प्रियंका ने ये बोला था कि सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए. मुझे लगता है आपकी पूरी जर्नी को उसे एक स्टेटमेंट में हम समराइज कर सकते हैं. एंड कंग्रेचुलेशंस कथाकार के लिए आपको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला और Thank you. 6 times you got Six it, right? times, yes. 6 times you got it. So बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशंस Thank you. हमारी तरफ से. सो पहले बताइए कैसे कथाकार में आप आए, इसे एक फिल्म के बारे में, उसके जर्नी के बारे में और अवार्ड्स के बारे में. सो स्टार्ट करते हैं कि ये अप्रोच कहाँ से आया था, आपको किसने अप्रोच करा था और पूरा प्रोसेस ज़रा बताइए. Sure. So actually मैं जब भी किसी को बताती हूँ तो I say acting को मैंने नहीं चुना है, acting ने मुझे चुना है. Because I always had this passion from inside of expressing myself, and I think acting is such a great thing where you can play like various roles, and actually all the characters can come to life just by whatever you want to portray. So I was always passionate about that. However, so अब मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आई यूज टू मेक दो स्मॉल वीडियोज जो मुझे थोड़ा सा एक्टिंग से कनेक्टेड रखते थे. सो आई यूज टू start posting it on TikTok. This is where it started, and then gradually on Instagram, and then वहाँ से धीरे धीरे लोगों ने approach करना start करा that some, and I will not say directors ने approach करना start करा, but yes, at least I thought that I'm going into the right direction. And then somehow I was getting script. I started getting a few scripts after I did my pageantry. That was when जब Mrs. India 2 बारी जीता, and it was all across the news that like I became 2 times Mrs. India winner, and then I represented India internationally. तो उसके बाद lot of news coverage was there. So after that जब मुझे scripts आनी शुरू हुई तो कुछ ऐसी आ रही थी जो मुझे लग रहा था कि I don't know if it's right or not. So I was giving it time, like I was waiting for the right time. क्योंकि मुझे ऐसा भी नहीं था कि I wanted to jump into something which later I would have felt like नहीं, this is not what I want to do. Yeah. And but जब ये script आई मेरे पास कथाकार की where I am playing a role of a cop. Yeah, woman police officer. Police officer, yes. And to so much I could relate because my entire life journey has been, a whole transformation of what you see me today versus what I was before. I was a very shy and a reserved person. Chartered accountancy की journey मेरी रही है जहाँ मैं 7 बारी fail करके then I have cleared it, I've cracked it. So वहाँ पे a lot of naysayers were there around me who said that you should not do it, and but then like proving the worth not to just myself, to the world, but then more than that I had always blocked those noises. Yeah. Those I never let it come to me. Hey. And that's what this story was all about. Like this girl is very next door, sweet girl, or flashback में यही है. And then how her entire journey changes when अब मैं secret नहीं बता सकती movie का, but then there is an incident that happens which entirely changes her, and she really becomes like a very powerful police inspector. And इसमें भी क्या होता है throughout her journey जहाँ पे उसे कोई भी बोलता है ना that you are worthless. इसमें एक word है जहाँ पे एक line है basically जब भी उसे बोलते हैं ना कि तू फुद्दू है, तो literally she transforms into like super power कि कैसे बोल दिया. So this story also I could resonate a lot with actually what I'm telling you, like my journey जहाँ पे लोगों ने सोचा कि मैं worthless हूँ और वही लोग अब बोलते हैं हाँ हम तो कहते थे ये कर लेगी देखो. So it happens, no, like people will say anyways. That's why I say like you choose your path and you keep walking on that no matter what people are telling you. And that's what happened actually in the movie of Kathakar, where I felt that जहाँ पे इसमें बहुत ही एक serious topic भी था, that is human trafficking. इसमें this story revolves around that. Okay. Now let me tell you the movie. The movie name is Kathakar. Kathakar means telling story through Kathak. Okay. So this story also is like how this lady who is very intelligent, powerful, and intellectually she connect the dots whatever she gets throughout the movie, and then she unravels a human trafficking case. Okay. So I will say it's a saga of a powerful woman, who despite whatever challenges she faces in life, but she comes out as a power. Okay, fine. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट भी बोलना चाहूँगा कि
सोसाइटी कैन टेल यू एनीथिंग नाउ, मतलब पढ़ाई कर ली, सीए बन गई, अब क्या मूवी कर ली. नहीं, सोसाइटी के क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते. Yeah. I really feel Okay. that, you know, when I was trying to crack CA, after every 10 days I was being asked CA कब clear हो रही है. Literally I had to tell my neighbor that, auntie, you know, papers also come after 6 months. Chartered accountant is one of the toughest examinations. And then if you ask me after 10 days when am I cracking my CA, it's not possible, right? वही. वो crack हुई तो शादी कब हो रही है, शादी हुई तो, you know, there are always those endless questions. मैंने एक चीज सीखी है लाइफ में, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि नो मैटर आपसे कितने भी सवाल पूछे जाएं, पीपल डोंट नो what I am going through Yeah. or what I am growing through. Exactly. So let it be my journey. Yeah. Let me decide. Yes. That's a beautiful statement. Powerful statement too. Yep. तो मेरा नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है कि जैसे कि आपने बताया कि जैसे ही इस कैरेक्टर के बारे में आपने पढ़ा, आप रिलेट कर पाए, उन्हें एक जर्नी से रिलेट कर पाए. टेक अवे क्या था एज अ वुमन, एक रोल करने के बाद एक टेक अवे क्या था आपके लिए उस एक पूरे स्टोरी से? किस तरीके से कथाकार ने आपको चेंज किया, अगर चेंज किया है तो जरा बताइए. कथाकार ने मुझे बहुत चेंज करा इन द सेंस व्हेन आई वाज देयर ऑन द सेट आल्सो. You'll not believe I have literally lived each and every moment. ओके. मैंने पूरी मूवी में ग्लिसरीन यूज नहीं करी है. एंड लेट मी गिव यू बैकग्राउंड. आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कॉल्ड कॉज फाउंडेशन. ओके. एंड वहाँ पे वी गिव एजुकेशन, वी प्रोवाइड एजुकेशन टू विक्टिम्स ऑफ यू नो हु अंडरगोज अब्यूज, including human trafficking. Okay. So I had already met those victims in my life, where हम अपने तरीके से किसी ना किसी तरह try करते हैं how to make them happy. We have also opened computer facility for them so that you know they should have some job or education later on. Yes, yes. And but actually when I was there and I was playing that role, I was on the other side, but still you know वो एक moment आता है जहाँ पे वो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो रो रही हैं, and despite using, like, I chose not to use glycerine, but I was trying to live that moment कि क्या उस टाइम पे वो बच्चे फील कर रहे होंगे. So even after the cameras were rolled, I mean I was But, yeah. still into that. मुझे बहुत टाइम लगा है उस पूरे कैरेक्टर से निकलने में. ओके. और मेरा टेक अवे यही था कि ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करना चाहिए. मतलब कोई एज नहीं होती है ड्रीम की. सबसे पहली बात तो यू नो आप किसी भी टाइम पे कोई भी ड्रीम देख सकते हो. पहली बात तो हु विल थिंक दैट समबडी कैन स्टार्ट ऑफ देयर बॉलीवुड जर्नी आफ्टर मैरिज. यू नो आजकल तो ये होता है ना कि ठीक है मैरिज हो गई तो अब खत्म, मूवी में नहीं आएगी वो, वी नो मोर. सो फॉर मी इट स्टार्टेड ऑफ लाइक आई वाज शेयरिंग विद यू अभी बिफोर दिस इंटरव्यू दैट यू नो एवरीथिंग स्टार्टेड आफ्टर मैरिज. My Mrs. India journey, my whole Bollywood thing, it started off after that. So I think biggest takeaway यही है जो मैंने आपको बोला भी कि ड्रीम्स देखना नहीं छोड़ना और आसपास की नॉइज को बिल्कुल शट डाउन करके रखो and just focus on keep work. carving your own path, which is very important. You have to be focused on what you want to do in life, because लोगों तो कहते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना. हाँ, लोग गाना भी है ना खूबसूरत सा. जी हाँ. Whatever you do, they'll never be happy, right? So you choose your happiness. Yes. And I think everybody's happiness mostly lies in their passion and dreams. यार उसके बिना लाइफ क्या है? Yep. Talking about passion, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक बात आपने मुझे बताई थी कि आपने जॉब छोड़ी नहीं है अभी तक. You're still working as a chartered accountant. Yeah. And you're also working on your passion. तो जब आपको वेकेशन मिलता है जॉब से तब आप अपने पैशन प्रोजेक्ट पे काम करते हो, यानी कि एक्टिंग, मॉडलिंग, इन सब में आप इन्वॉल्व होते हो. तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप सीए हो, मॉडल हो, एक्टर हो, ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो? मतलब हाउ ये होता कैसे है? क्योंकि मल्टीटास्किंग के बारे में मैंने सुना है, बट एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है. क्योंकि वेकेशन के टाइम पर भी you're working, but you're working on your passion, so it won't feel like a work, but still, you know, you are going through something. You gave a brilliant answer yourself that, you know, when you are working on your passion, you don't feel that it's a work. See. I mean, for me also, that's how I manage it. Like, you know, I'm working, and then after I come back, I go to various events where I'm called. Then on the weekends, I am doing various brand shoots. And जो मेरा वेकेशन टाइम है उससे मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा काम अलाइन हो पाए. यू नो द डेट्स हैज टू बी अलाइंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेरा ये जो बॉलीवुड प्रोजेक्ट भी था, ये भी समहाउ आई विल से आई डोंट यूज द वर्ड लक, बट आई विल से माय इंटेंशन वाज प्योर. हार्ड वर्क किया तो ब्लेसिंग आई, एब्सोल्युटली ब्लेसिंग आई, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. Okay. So but everything was aligned. In fact, you know, spiritually I believe a lot. So luckily जो डायरेक्टर भी थे,
वो भी he was like so everything. In fact ये जय गुरुजी प्रोडक्शंस के अंडर मूवी बनी है, तो हमारे लिए तो सब कुछ एकदम था कि everything is like on the right path. Sort of. इससे मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपको मिलाने के लिए जुट जाती है. Absolutely. It's nice. So universe was conspiring for you. I told you, that acting shows me. I didn't choose acting. I always want to do, and I want to do a lot more. I want to do a lot of character-based roles. Okay. Abhi, So next, that makes me feel alive, I will say. So जैसे that आपने makes you बोला feel आपकी like, बात को क्वेश्चन आपने पूछा था कि कैसे मैनेज एंड मैं टायर्ड नहीं होती हूँ बिकॉज मुझे इस सब से ही लगता है कि जिंदगी चल रही है. आप कुछ भी निकाल दोगे इसमें से. मैंने बोला मैं मुझे रेस्ट करना नहीं पसंद है. आई मीन लॉट ऑफ पीपल विल से कि वर्कहॉलिक हो गई. हाँ ऐसा, बट दिस इज व्हाट गिव्स मी एनर्जी. दिस गिव्स मी एनर्जी. इट्स नॉट लाइक that I'll sleep and I'll be relaxed and मुझे उसमें भी लगता रहेगा कि नहीं यार मुझे कुछ करना है. Like every day is a learning opportunity. I feel हम कितना कुछ learn कर सकते हैं. True. And एक ही लाइफ मिली है तो करो जितना. Explore. I'm an explorer. और प्रियंका मैंने एक और चीज़ सुनी देखी, मैं कॉन्टेक्स्ट पहले बताता हूँ. तो जैसे ही मौका मिला आपके साथ बात करने का, इंटरव्यू का सब शेड्यूल करने का, तो मैंने आपका फेसबुक पेज उठाया, देखा. मतलब रिसर्च करना पड़ता ना, खाने के लिए करते हैं सब कुछ. तो देखा मैंने, और पहले मैंने पोस्ट देखा कथाकार का आपके अवार्ड्स के बारे में. आई वाज लाइक वाओ यार, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग. उसके बाद धीरे धीरे और स्क्रॉल करा, फिर मैंने देखा एक फ़ोटो जहाँ पे आप कांच पे खड़ी थी, और आई वाज लाइक वाओ यार ये भी कर लिया. और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी आपसे कुछ नहीं कह सकती. मैं वही चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि सीए कर लिया, मिस इंडिया कर ली, मिसेस इंडिया कर लिया, मूवीज़ कर ली, मॉडलिंग कर ली, कांच में भी गए. कुछ बचा है बाकी कुछ भी. बट स्टिल या टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस देयर. कांच कैसा था आपके बेस? I think Cannes was nothing less than a surreal experience for me because मेरे लिए वो ड्रीम था. मतलब मैंने आज तक वो ऐश्वर्या राय को, सबको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को खाली कांस फिल्म फेस्टिवल जैसा कुछ होता है, you know, something like it's like a magic. Okay. That's what I always heard. But then, you know, once I got into entertainment industry, so somehow I got an opportunity that I can, you know, come there and walk on the red carpet. अब मैं गिन के 3 डिज़ाइनर ड्रेस लेकर गई थी. सो मुझे लगा कि मुझे ये था कि भाई उनकी ड्रेसेस की इज्जत बच जाए, अच्छे से मैं चल लूँ. और बट रियली व्हेन आई वाज देयर, I mean everything was nothing less than a miracle. Okay. Like when I walked first time, second time, third time, like the kind of love and affection I got from everywhere on news media, like where people were comparing me with, you know, Aishwarya Rai, and she's an icon for me. Yeah. ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था. हाँ मतलब कहाँ मैंने उनको देखा है, लोग कंपेयर कर रहे हैं कि इट्स लाइक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉक देयर 5 times. 5 times. And you're also the first Mrs. Yeah. So I became first Mrs. India to walk red carpet. Ever. And वहाँ पे हमारी मूवी बेसिकली हम प्रमोट करने गए थे. So हमारा जो ट्रेलर था वहाँ पे इंडियन पवेलियन होता है कांस में, वहाँ पे it was played. Okay. And also the movie was being screened. Okay, बढ़िया. मतलब हम जब छोटे थे, मतलब अभी भी छोटा ही है, बढ़िया. न्यूज़पेपर में जब भी हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में जो भी न्यूज़ आता था, कांस के बारे में हमें एक चकाचौंध देखता हूँ वो. और पहली बार मैं किसी को देख रहा हूँ जो कांस में गए मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है. तो मतलब मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ कि यार वो कैसा रहा होगा वो रेड कारपेट का पूरा वॉक का, क्योंकि फ़ोटोज़ में देखा है हमने, वीडियोज़ में देखा है. बट यू वेंट देयर, आप चले वहाँ पे, मूवी को प्रमोट करा, इंटरैक्ट करा. सो कभी भी ज़िंदगी में माइन्यूटली भी सोचा था कि यार ये मैं कर पाऊँगी? कभी सोचा था मैंने, सीरियसली कभी भी नहीं सोचा था मैंने. मैं इनफैक्ट मैंने मूवी भी सोचा था कि हाँ मेरा पैशन है, ऑफ कोर्स आई वुड वांट टू एक्ट, बट आई नेवर थॉट दैट आई विल गेट 6 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इंक्लूडिंग दादा साहब फाल्के. इट्स लाइक अनदर ड्रीम दैट हैज कम ट्रू. सो आई एम जस्ट गोइंग राइट नाउ व्हाटएवर आई फील दैट ओके जो भी हो रहा है, आई मीन ग्रैटिट्यूड. हाँ, विद ऑफ कोर्स विद ग्रैटिट्यूड, दैट नेवर गोज आउट ऑफ मी. सो एंड इट ऑलवेज कीप्स मी फोकस्ड एंड ग्राउंडेड. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. ओके, हम फिर से चाहेंगे आपको कांच में देखना ज़रूर. हाँ, next time maybe it's a stronger journey. Let's see what comes in. But yeah. What's the next thing? अब एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में हल्का सा हिंट मुझे दिया था, ज़रा हमारे ऑडियंस को और लिसनर्स को भी ज़रा बता दीजिए. हाँ, a very nice video song is coming up. It's a Punjabi video song. Okay. It's with a very famous artist also. And उसमें
इतना हिंट दूंगी, आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ अ म्यूट गर्ल, Okay. सो इट्स अ स्टोरी बेस्ड सॉन्ग, स्टोरी बेस्ड सॉन्ग। स्टोरी बेस्ड सॉन्ग है एंड आई होप ऑडियंस को पसंद आएगा वो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, नाइस, रोमांटिक टच सॉन्ग, सो इट्स बढ़िया, बढ़िया। जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके। और जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर रोल्स करना आप चाहते हो और एक्सप्लोर करना चाहते हो एज एन एक्टर, अपने डिफरेंट डिफरेंट शेड्स को और लेयर्स को भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो एक्टिंग प्रोजेक्ट्स और कौन से आप ऐसे सीख कर रहे हो या फिर कोई लाइंड अप है कुछ? हाँ, अभी आई एम जस्ट गिविंग ऑडिशंस एंड आई एम लुकिंग इनटू सम स्क्रिप्ट्स, सो Okay. अभी मैंने एक पंजाबी का भी कुछ चल रहा है साथ अच्छा। में, एंड देयर इज वन मोर प्रोजेक्ट ऑफ अ वेब सीरीज गोइंग ऑन, सो I would not want to reveal until Yeah. everything is finalized, keeping fingers crossed. Yeah, so next time मैं आऊँ, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, जरूर hopefully. जरूर जरूर, आपके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है। Thank you. और लास्ट में मैं आपसे बस एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा जो ऑलरेडी आपने एक बार बोला है, बट स्टिल जैसे कि हमने शुरुआत इसी पे की थी कि सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सपने बहुत इंपॉर्टेंट है बाब, और उसके एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हो आप। तो बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, यंग लोग हैं, कुछ लोग मिडिल एज में हैं, कुछ लोग एक ऐसे स्टेज में जहाँ पे उन्हें लगता है कि अब सब थम चुका है। उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? मुझे एक लाइन याद आ रही है, सुन। लोगों की, मतलब मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, कि वो ट्राई करने से डर जाते हैं कि पता नहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। और मेरी पूरी लाइफ स्टोरी ही इसलिए बनी है बिकॉज आई हैव, इट्स नॉट लाइक आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव फेल्ड मेनी टाइम्स बट देन आई हैव ऑलवेज गॉट अप। सो दैट इज माई मेन मैसेज फॉर एवरीवन। वो कहते हैं ना कि नो रिस्क नो ग्लोरी, सो वही वाली बात है कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको ग्लोरी कैसे मिलेगी आपको पता नहीं है। Any successful person you see, it's not that he or she has never failed, it's just that he or she has always got up despite so many failures. So that will be my message for everyone. Like, so I of course keep dreaming, keep working hard, keep your intentions pure and leave everything to the Almighty. The only thing you need to pay attention is your focus, what you want to do in life, and just keep going and keep going. You're unstoppable. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच प्रियंका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत सारी क्या कहते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हो तो ऐसा होता है ना कि हम मूवीज़ के बारे में बात करते हैं या फिर प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं, मगर एक चीज़ जो मेरे लिए टेक अवे है इस इंटरव्यू से वो ये है कि काफ़ी एक इंसाइटफुल एक कॉन्वर्जेसन था ये। यू नो, व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग्स और मूवीज़, यू ऑल्सो रिलेटेड दोज थिंग्स विद योर लाइफ। आपके जर्नी से आपने रिलेट करा, मूवीज़ कैसे आपके लाइफ से रिलेटेड है। बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके और उम्मीद है फिर से हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, Thank you so much, Sudhir, for calling me. Thank you. ऑल द बेस्ट।